ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਨਮਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜੋ ਵੀ ਮਾਇਆ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟਿਕੇ, ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਦੇ ਆਉਣੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ, ਤੁਸਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਰਾਹ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਜੰਗਲੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, ਵੇਖੀ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਨਾ ਭੁੱਲੇਗਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦੂਰ ਗਏ ਤਾਂ ਨੰਦੇੜ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਮਿਲ ਪਿਆ। ਸਾਥ ਦਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਥੀ ਕੁਸੰਗੀ ਸੀ। ਖੈਰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 800 ਕੋਹ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਆਇਆ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਹੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ, ਇਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਰਾਤ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਚੌਂਕੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਰਾਤ ਕਿਸੇ ਚੌਂਕੀ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣੀ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਸੌਣਾ। ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੌਂਕੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਕੁਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਡਰਾਕਲ ਹੈ। ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਹੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਸੋ ਗਏ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ੇਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਆ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਕੁਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਨੇੜੇ ਹੀ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ
याद कीता ते अरदास कीती, गुरु राम सिंह बिरद समारो। औगण मेरे रिद ना तारो। ए धन सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह जी, किरपा करो मेरे अंग संग सहाई होवो। सिंह है ते निज सिंह बचावो। सतगुरु जी इस शेर तो अपने सिंह नूं अपने सिख नूं बचावो। श्री अविचल नगरी पहुँचावो। सतगुरु जी मैनू गुरु की नगरी श्री हजूर साहिब पहुँचावो। ता साध संगत जी धन श्री सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह जी अपने सेवक दी पुकार सुन के चीनी घोड़ी ते तत्काल चीनी घोड़ी ते सवार हो के अपने प्यारे सेवक दे कोल जा प्रगट होए। उचारण करो जी धन धन श्री सतगुरु राम सिंह जी। दोनों सिंघां दे विचकार श्री सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह जी ने घोड़ी खिलार दिती। साध संगत जी चीनी घोड़ी ते सवार हो के आ गया। लाज रखन प्यारे दी चीनी घोड़ी ते सवार हो के आ गया। लाज रखन प्यारे दी अपने प्यारे दी पातशाह जी लाज रखण वास्ते प्रगट होए। ते साध संगत जी सतगुरु जी दे नाल अलौकिक प्रकाश सी। भाई जी हनेरे विच प्रकाश हुंदियां सार झट उठ गए। सतगुरु जी दे चरनां नाल लिपट गए। सतगुरु जी ने बचन किया, भाई तू डरदा क्यों है? उस ते तेरे साथी ने पिछले जन्म विच इस शेर नूं मारिया सी। हुण इस जन्म विच उस शेर ने उस नूं मारिया है। तू ना इन्हां दी फिक्र कर, तेरा इस दे नाल कोई लेना देना नहीं है। तू बेफिक्र हो के मेरे सामने चौंकी विच चला जा। साध संगत जी भाई जी अपना समान चुक के तुर पए ते चौंकी विच जा के आराम कीता। अगली सवेर सतगुरु जी दा जस करदियां ते भजन करदियां इकल्ले ही सफर वास्ते तुर पए। फिर राह विच कोई रुकावट नहीं आई। थोड़े दिनां विच श्री हजूर साहिब पहुँच गए। श्री हजूर साहिब रहिंदियां भाई जी सिੱਖੀ ਰਹਿਤ मर्यादा भी लिखते रहे ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की कथा भी करते रहे। एक तां सतगुरु जी की किरपा, दूजा चंगे विद्वान, तीजा प्रेम होण कारण कथा बड़ी चंगी करते सन। भाई जी की कथा तो प्रभावित हो के सिख कथा भेंट बड़ी करते। कथा की समाप्ति उपरंत एक रात नूं श्री सतगुरु राम सिंह जी ने सुपने विच दर्शन दे के वापस श्री भैणी साहिब आउण लई आखिया। अगली सवेर ही तैयारी करके कुछ कु कड़े, चक्कर, खंडे ते कंघे खरीद के मत्था टिकी सारी माया गुरुद्वारा साहिब मत्था टेक के वापस पंजाब आउण दी अरदास कीती। उत्थों दे सिख
पर प्रेम वस रुदन करन लगे ते आप वापस ना जान लई तरले करन लगे। कहन लगे कि तुहाडा विआह इत्थे ही कर दिंदे हां, तुसी इत्थे पक्की रिहाइश अख्तियार कर लो। भाई जी ने सब नूं धीरज दित्ती। गुरु जी दा हुक्म इसे तरह ही है कह के सब नूं फतेह बुला के वापस तुर पए। वापस आउंदियां राह विच खर्चा मुक गया। हुण हैरान सन कि की कीता जावे ते साध संगत जी मंग के खाण दा हुक्म नहीं सी। राह विच कोई जानू पछाणू भी नहीं सी कि जिस कोलों उधार लिया जाए। भावें आप 12 पहर भुखे रहे सन पर नेम नाल अपना सफर जारी रखिया ते अपना नितनेम भी करी जांदे सन। त्रे लगन करके दूरों एक बौली वेख के उत्थे गए। जदों बौली कोल गए तां साध संगत जी उत्थे पहुँच के वेखदे हन कि बौली दे कंढे ते एक थैली पई हुई है। भावें पैसे तो बिना अन्न ना खाण करके 12 पहर दे भुखे सन पर फिर भी थैली वेख के बेईमान ना होए। सोचन लगे कि शायद कोई भुल गया होवेगा। अच्छा इस दी होवेगी, उसनूं दे दियांगा। 5 इशनाना करके जल छकिया ते कुछ आराम करके फिर तुर पे। वो थैली भी हाथ विच फड़ लई। राह विच मिलदे हर राही नूं पुछदे जांदे हन कि ये थैली उसदी ते नहीं, उसदी तां है लै लवे। पर साध संगत जी किसे झूठ बोल के वो थैली ना लई। जदों पुछदे पुछदे चौखी दूर चले गए तां सतगुरु जी ने जनाया कि ये थैली मैं आप ही तेरे खर्चे वास्ते बौली दे कंढे रखी सी। तू निशंग हो के वरत। फिर जदों थैली खोली तां विच कई चांदी दे रुपए सन। भाई जी ने इसका राशन खरीद के इसका लंगर बना के छकिया। कुछ तसल्ली हुई। फिर थोड़ा आराम कर अगे तुर पे। फिर राह विच कोई तकलीफ ना हुई ते सफ़र करते हुए श्री भैणी साहिब दे नेड़े पहुँच गए। अजे श्री भैणी साहिब तो 2 को दूर सन की अंतरजामी श्री सतगुरु राम सिंह जी दीवान विचों उठ के अपने प्यारे सिख नूं अगों जा के लियाउण लई तुर पे। तकरीबन 1 कोह ते जा दर्शन दिते। भाई जी दर्शन करदियां सार ही चरना ते नतमस्तक हो गए। श्री सतगुरु जी ने उठा के छाती नाल लाया ते सुख शांत पुछी। फिर भैणी साहिब वल नूं हौली हौली तुरे जांदे सतगुरु जी ने भाई जी नूं पुछया कि असां सुनिया है कि राह विच तुहानूं शेर पै गया सी, कोई तकलीफ तां नहीं होई? नाले ये भी दसो कि राह विच खर्चे दी तंगी तां नहीं आई जिवें भाई जी नाल वरतिया सी? मेरे पातशाह जी आप ही वो सब दसी जाते सन। अखीर ते कहा भाई सतगुरु जी सिख दी राखी करते हैं। भाई जी प्रेम मुग्ध हो नाल नाल तुरी जाते हैं। सहजे सहजे दीवान स्थान ते पहुँच गए। साध संगत दा भारी इकट्ठ वेख के भाई जी हैरान हो गए ते सोचण लगे जदों मैं गया सां उदों तां सिर्फ 13 ही सिख सन
हुण तां अनगिनत ही सिख हन। सच्चे पातशाह जी ਸਿੰਘਾਸਣ ते बैठ गए ते भाई जी कोल ही संगत विच बैठ गए। फिर जदों सतगुर जी ने ਰਹਿਤ मर्यादा बारे पुछया तां भाई जी ने लिखी हुई ਰਹਿਤ मर्यादा विखा दिती। फिर सतगुर जी ने इहो ਰਹਿਤ मर्यादा रखण वास्ते सिखां नूं हुक्म कीता। वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह।